Okay, let us start the lecture. Today we will see that if a semigroup amalgam embeds, then it will embed in its free product. Okay, if it's embeds, that it will always embed in its free product. That's the theorem. Monad free product. Okay, it is the amalgamated free product actually. जो हमने कल डिस्कस किया था ना वो amalgamated free product. द सेमी ग्रुप जिसको हमने पी से डिनोट किया था एफ और रो. ओके, द सेमी ग्रुप एमलगम the semigroup amalgam A, which is this list U S I, and the mapping is phi I. Okay, where this I is in the index set I. This amalgam is embeddable, is embeddable in a semi group. किसी semi group में embed होगा in a semi group if and only it is naturally embedded, and only if it is naturally embeds, it's naturally embedded. Okay, naturally embedded in its free product, free product. Proof. Suppose A embeds in its free product. Suppose this A embedded in its free product, in its free product P, which is equal to F or rho. Okay, suppose it embeds in its free product, then obviously this since this is a semi group, P is a semi group, therefore the semi group amalgam A, it embeds in a semi group P, so it means that it is embeddable. Therefore A is embeddable, is क्योंकि ये embed हो रहा है ना semi group में, तो therefore it's embeddable, and embed is in a semi group, and embed in a semi group P. Now conversely, suppose that it is embedded, it's embedded in a semi group T. Say we will show that it will always embed in its free product. Conversely, assume that A is embeddable in a semi group TC, in a semi group T. So this part is not true, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने कहा कि अगर ये एम्बेड हो रहा है P में देन इट्स एम्बेडेबल ऑब्वियसली. ओके, ना कन्वर्सली आपने ये अज्यूम किया कि अगर ये किसी सेमी ग्रुप में एम्बेड हो रहा है, आपको प्रूव करना है कि तब जाके ये P में भी एम्बेड हो रहा है. that P is the amalgamated free product. Okay, we will show that it will embed
in its free product. आपने वो एक्सरसाइज की थी, उसमें आपने ये बताया था कि अगर आपको ये प्रूव करना होगा कोई एमलगम एम्बेड हो रहा है इसके फ्री प्रोडक्ट में, तब जाके आपको सिर्फ दो ही चीज़ें प्रूव करनी। एक तो आपको प्रूव करना वो जो म्यूआईज वहाँ पर है मैपिंग दे शुड बी वन, एंड सेकंड आपको ये प्रूव करना है ये जो आपके पास एस आई म्यू आई इंटरसेक्शन एस जे म्यू जे है, इट शुड बी सबसेट ऑफ यू म्यू. So I can write it. It is sufficient. It is suffice to show that each mu I is one and Si mu I intersection Sj mu j is subset of u mu, where what are these mu i's? They are actually mu I is equal to mu I जो आपने कल डिफाइन किया था ना, mu I. What's mu I? Mu I is equal to theta I rho natural, and what is this theta I? Theta I, they are the mappings from Si to F, which maps, it's a natural morphism which maps each element of Si to a one letter word. Okay, so ये मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा. Si theta I is equal to the one letter word Si. ये इसकी डेफिनेशन है F is theta I की. This mu I is theta I rho natural. Theta I is this map, and what's rho natural? Rho natural is a map from F to F over rho, and this rho is the congruence. ये सारा हमने डिस्कस किया था. Rho is the congruence. This हमें प्रूव करना है अगर आपका जो सेमी ग्रुप एमलगम है अगर वो किसी सेमी ग्रुप में एम्बेड हो रहा है, then it will always embed in its free product. ओके, तो फ्री प्रोडक्ट में एम्बेड होने के लिए आपको सिर्फ ये दो चीज़ें प्रूव करनी है. एक तो ये जो म्यू आईज है दे शुड बी वन एंड ऐसा म्यू आई इंटरसेक्शन एस जे म्यू जे इज सबसेट ऑफ यू म्यू. ओके, so where these mu i's जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, that's theta I rho natural. Theta I, they are the mappings from Si to F, which maps each element of Si to a one letter word, because F is consisting of the words जिनके letters Si's में है. Okay, so and rho natural, it's a natural map from F to F over rho, and this rho is the congruence. Generated by the relation R. What is it? It's equal to u phi I theta I, these pairs u phi j theta j. आवाज नहीं आ रही? जो बाकी स्टूडेंट्स हैं इनको आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज थोड़ी कम आ रही है सर. ओके. तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास ये जो है कन्वर्स आप इसका कर रहे इस थ्योरम का, आपको एज्यूम करना है कि अगर आपका एमलगम ये किसी सेमी ग्रुप में एम्बेड हो रहा है, आपको प्रूव करना ये फिर इस जो आपने फ्री प्रोडक्ट डिफाइन किया है एफ और रो, ये फिर इसी में एम्बेड हो रहा है. नेचुरली एम्बेड मतलब है कि मतलब नेचुरल का है एक्चुअली दे नेचुरली एग्जिस्ट एक्चुअली पी और रो जो आपने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन जिसकी आपने की है ऑलरेडी, अगर ये एम्बेड हो रहा है तब जाके ये इसी में एम्बेड हो रहा है, इसी सेमी ग्रुप में जो कि फ्री प्रोडक्ट है, एमलगमेटेड फ्री प्रोडक्ट, जो इस एमलगम का फ्री प्रोडक्ट है पी which is equal to f for rho, where this rho is the congruence generated by this relation u phi I theta I u phi j theta j. u belongs to u. तो सो गिवन ये है कि ये किसी सेमी ग्रुप में एम्बेड हो रहा है. ओके, since A
is embedded in some semigroup T, ये किसी सेमीग्रुप T में एम्बेड हो रहा है. सो देन बाय डेफिनेशन से आपको क्या मिल जाएगा? देन देयर एग्जिस्ट, अगर आप डेफिनेशन देखो, देन देयर एग्जिस्ट ए मोनोमॉर्फिज्म, देन देयर exists a monomorphism लैम्डा, ये आपके पास होगी क्योंकि ये एम्बेड हो रहा है टी में. मोनोमॉर्फिज्म यू, लैम्डा फ्रॉम यू टू टी, एंड फॉर ईच आई इन आई, एंड फॉर ईच आई इन आई there is a monomorphism. Which is lambda I from Si to T, such that this holds first property, phi I lambda I is equal to phi j lambda j, they are all equal. Phi j lambda j, they are equal to lambda. Okay, for all I and j in I. तो इसको मैं डायग्राम की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. इट्स u, दिस इज si, this one is sj, here it's phi I, here it's phi j, then it embeds in a semigroup it embeds in this T. So these are the morphisms lambda I, which are monomorphisms. This is lambda j, and this is your lambda. Okay, this is lambda. तो अगर ये सेमीग्रुप टी में एम्बेड हो रहा तब जाके ये मोनोमॉर्फिज्म्स आपके पास एग्जिस्ट होगी, जिनकी ये प्रॉपर्टीज होगी. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज एस आई लैम्डा आई इंटरसेक्शन एस जे लैम्डा जे. ये जो इंटरसेक्शन है दिस इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है यू लैम्डा के बराबर, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जी, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जी. तो ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास है टी के लिए. अब यही प्रॉपर्टीज एक्चुअली आपको पी के लिए प्रूव करनी है. बट पी के लिए कौन सी मैपिंग है एस आई से लेकर टी तक? वो है म्यू आई. अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे, आपको एक्चुअली म्यू आई प्रूव करना है कि ये मोनोमॉर्फिज्म है. व्हाट इज म्यू आई? दे आर द मैपिंग इज फ्रॉम एस आई टू पी, बिकॉज म्यू आई इज थीटा आई रो नेचुरल. थीटा आई इज अ मैप फ्रॉम एस आई टू एफ, एंड रो नेचुरल इज अ मैप फ्रॉम एफ टू एफ रो, विच इज इक्वल टू पी, जो आपका पी है. सो दैट मीन्स म्यू आई, दे आर द मैपिंग्स फ्रॉम एस आई टू पी. यही आपको प्रूव करना है. ये जो मैपिंग्स है ये मोनोमॉर्फिज्म्स है. ठीक है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि ये जो एमलगम है ये पी में एम्बेड हो रहा है. तो मॉर्फिज्म्स तो है ही ये. थीटा आई इज अ मॉर्फिज्म, रो नेचुरल इज अ मॉर्फिज्म, सो देयर कंपोजिशन इज आल्सो मॉर्फिज्म. सिर्फ इसकी मोनोमॉर्फिज्म के लिए आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो म्यू आईज है दे आर वन. और सेकंड प्रॉपर्टी आपको फिर ये प्रूव करनी है. एक तो ये आपको प्रूव ये 1 1 है. सेकंड आपको ये प्रूव करना है दिस इंक्लूजन. आपको एक्चुअली इक्वलिटी चाहिए, बट रिवर्स इंक्लूजन इज ऑलवेज देयर, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई दिस रिवर्स इंक्लूजन. या वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा. रिवर्स इंक्लूजन हमेशा आपके पास होता है. तो आपको सिर्फ ये इंक्लूजन चाहिए इसमें. एस आई म्यू आई इंटरसेक्शन एस जी म्यू जी इज इक्वल टू यू म्यू. एक्चुअली आपको इक्वलिटी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखना चाहोगे ना ये एम्बेडेबिलिटी की कंडीशन क्या है. अगर आपको किसी सेमी ग्रुप में प्रूव करना होगा कि ये एम्बेड है, इसकी ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दीज टू प्रॉपर्टीज. सो एस आई लैम्डा इंटरसेक्शन एस जी लैम्डा जी शुड बी इक्वल टू यू लैम्डा. तो वहाँ पर जो मॉर्फिज्म है वो है म्यू आइज, और जो मॉर्फिज्म लैम्डा है वो वहाँ पर म्यू है. तो वही चीज़ें आपको एक्चुअली उस म्यू आइज और म्यू के लिए प्रूव करना है, जो आपके पास गिवन है लैम्डा आइज के लिए, क्योंकि ये गिवन है कि ये सेमी ग्रुप एमलगम टी में एम्बेड हो रहा है. तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है ये जो है आपका ये म्यू आइज है ये 1 1 है. ओके, लेट्स फर्स्ट प्रूव दिस म्यू आइज आर 1.
ओके, तो आपने ये तो आपने प्रूव किया है कि ये जो P है, P इज द पुश आउट, P पुश आउट है डायग्राम इसका है ना, U टू SI डायग्राम जो है ना, U टू SI, P इसका पुश आउट है, तो मतलब एक स्क्वायर जो है वो कम्यूट हो रहा है, बट T के लिए भी वही प्रॉपर्टी है। तो आपने ये भी चेक किया अगर किसी और के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी तब जाके P से लेकर T तक एक मैप एग्जिस्ट होगी। ये मैं अपने इसको ऐसे लिख दूँ, since P is the push out of this diagram, is the push out of diagram, this diagram U to SI, इस डायग्राम का पुश आउट है ये, I is in I, so therefore there exists a morphism delta from P to T such that the following diagram, डायग्राम ये होगी। पहले तो आपको P के लिए देखना है, विच इज SI to P, म्यूवाइज आपके पास है जो, क्योंकि P इसका पुश आउट है। अब और एक T के लिए भी आपको इसी तरह की मॉर्फिज्म्स है जो स्क्वायर को कम्यूट कर रहा है, लैम्डा आइज, ओके, जो आपने भी देखा, लैम्डा फाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई जे लैम्डा जी, और म्यू आई की भी वही प्रॉपर्टीज है, वो भी इस डायग्राम को कम्यूट कर रहा है। Is the push out of this diagram, okay? So then by आप प्रपोजिशन भी देख सकते हो, प्रपोजिशन 8.2.3 में हमने इसको प्रूव किया है, P पुश आउट है। पुश आउट का मतलब यही है कि अगर कोई और सेमी ग्रुप क्यों होगा आपके पास जिसके पास यही प्रॉपर्टीज होगी जो कि P की है, तब उस केस में आपको P से लेकर उस सेमी ग्रुप तक मॉर्फिज्म मिल जाएगी। और यहाँ पर आपके पास T की वो प्रॉपर्टीज है, अगर आप T को देखना चाहोगे फिर से, T की ये सारी प्रॉपर्टीज है, T के लिए स्क्वायर कम्यूट हो रहा है। So therefore there must be a morphism delta from P to T such that this diagram commutes. That is, commute का मतलब क्या है, mu I lambda is equal to mu I delta is equal to lambda I for all I in। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे म्यू आई जो है वो 1 है, म्यू आई इज 1, म्यू आई इज 1। तो म्यू आईज आर देयर मैपिंग इज फ्रॉम SI to P, so let's choose any two elements x and y in SI such that x mu I is equal to y mu I, आपको प्रूव करना है x equal to y। अब दोनों साइड से डेल्टा अप्लाई कीजिए, x म्यू आई डेल्टा इज इक्वल टू y म्यू आई डेल्टा, बट दिस म्यू आई डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा, जो आपने अभी ट्रायंगल डायग्राम देखा, यहाँ से अगर आप इसको फिर से देखना चाहोगे, यू कैन सी दिस म्यू आई लैम्डा, म्यू आई डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा आई, ओके, लैम्डा आई। और लैम्डा आई जो है ये मोनोमॉर्फिज्म्स है, ये आपने यहाँ पर देखा, they are monomorphisms, okay, they are all monomorphisms। So it's xi lambda I is equal to x lambda I is equal to y lambda. Now since lambda I is monomorphism, which means that x equal to y, because lambda I is a monomorphism, so thus therefore mu I is 1 and hence therefore mu I is 1 and hence a monomorphism, क्योंकि मॉर्फिज्म तो है ही है, and hence a monomorphism, morphism for all I in I, हर किसी I के लिए मोनोमॉर्फिज्म है। So you have a monomorphism from SI to P, SI to P। अब सेकंड प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ना यू हैव टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी।
or also next this mu, what's this mu? mu is equal to, अगर आप mu की definition देखोगे, mu किसके बराबर आपने लिया था? mu is equal to phi I mu I, ये आपने ऐसे डिफाइन, mu is equal to phi I mu I. So therefore mu is also a monomorph. Therefore mu is also a monomorphism. mu is also such that this mu is equal to phi I mu I. ये आपने mu I से डिफाइन किया, phi I mu I. mu I आपने प्रूव किया मोनोमॉर्फिज्म है, phi I गिवन है, ये है ही मोनोमॉर्फिज्म. So this mu is also a monomorphism. Okay. So अब इसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना, आपको ये आप वेरीफाई करना है एस आई म्यू आई इंटरसेक्शन एस जे म्यू जे, दे शुड बी इक्वल टू यू म्यू. ये आपको अब चेक करना है, एस आई म्यू आई इंटरसेक्शन एस जे म्यू जे, दिस शुड बी इक्वल टू यू म्यू. ओके, यू इमेज यू अंडर म्यू. सेकंड प्रॉपर्टी एम्बेडेबिलिटी की. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? म्यू आई मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए और म्यू भी मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए. ये पहली प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी ये है. सो लेट्स फर्स्ट टेक एन एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन. let x belongs to the intersection si mu I intersection sj mu g. So it means that this x is of the form of si mu I and sj mu g. So which means that there exists si belongs to si, okay, sj belongs to sj, such that this x is equal to si mu I is equal to sj mu g. और यही एलिमेंट एक्चुअली आपको प्रूव करना है, ये u mu में होना चाहिए, ये आपको चेक करना है. So let's find x delta. This implies, what's x delta? X delta is equal to x delta, delta मैंने अप्लाई किया, it's equal to si mu I delta, and this is same as sj mu j delta. और इसको आप फिर से लिख सकते, दिस इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पर मैं लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट्स दिस म्यू आई डेल्टा. म्यू आई डेल्टा किसके बराबर है? ये है लैम्डा आई के बराबर. ओके, दिस इज इक्वल टू लैम्डा आई. सो this means x delta is equal to si lambda I. Okay, si lambda I and it's sj lambda g, इसके बराबर. That implies x delta, it belongs to si lambda I, belongs to si lambda I, and x delta also belongs to sj lambda g, which implies that x delta belongs to si lambda I intersection sj lambda g. But our semigroup amalgam is in a semigroup T, and there are two morphisms. There are these morphisms lambda i's, such that lambda I they are monomorphisms, and this si lambda I intersection sj lambda g, it's equal to u lambda, ये u lambda के बराबर है. So which implies that x delta is equal to u lambda for some u in u. For some u in u, it's equal to x lambda. This u lambda, u delta, sorry, u lambda, it's equal to u lambda for some u. So now let's see this. Let's see this si lambda I. अब मैं lambda I की 1 यूज कर रहा हूँ. This is equal to what's si? Si किसके बराबर है? What's this si? What's this lambda I? Sorry, what's lambda I? This is si. What's lambda I? Lambda I is mu I delta.
जो अभी वो ट्राइंगल से आपने इसको चेक किया. नाउ व्हाट्स दिस एस आई म्यू आई, एस आई म्यू आई, एस आई म्यू आई इट्स इक्वल टू एक्स, ये एक्स के बराबर है, सो इट्स एक्स डेल्टा. एंड व्हाट्स एक्स डेल्टा जो आपने अभी चेक किया, एक्स डेल्टा इज इक्वल टू यू लैम्डा, इट्स इक्वल टू यू लैम्डा. ओके, इट्स इक्वल टू यू लैम्डा. बट दिस लैम्डा इट्स इक्वल टू, लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू फाई आई लैम्डा आई, लैम्डा इज इक्वल टू फाई आई लैम्डा. आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू फाई आई लैम्डा आई. ओके, ये आपने लिखा भी होगा किसी जगह, अगर हम वापस जाएंगे, आपने जब उसको लिखा था ना, ये एम्बेड हो रहा है इसमें टी में, वहां पर हमने इसको लिख दिया होगा. ये दो प्रॉपर्टीज है, ये देखिए, फाई लैम्डा आई इज इक्वल टू फाई जे लैम्डा जी, इट्स इक्वल टू लैम्डा. सो लैम्डा इज इक्वल टू फाई लैम्डा. ओके, इट्स इक्वल टू फाई लैम्डा है. तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया, वही हमने इसको यहाँ पर. सो लैम्डा इज इक्वल टू फाई लैम्डा आई. Now, but so that means you have Si lambda I is equal to U phi I lambda I. But this lambda I is 1 1. It's a monomorphism, so it means that the elements must be equal. So that means the Si is equal to U phi I because lambda I is 1 1. Is 1 1. Lambda I is 1 1. So Si is equal to U phi I. Si U phi I के बराबर आ गया. अब आप देखिए x किसके बराबर आ जाएगा. So this gives our x is equal to, that's equal to Si mu I, और Si भी आपने चेक किया, it's equal to U phi I mu I, that's equal to U mu, because phi I mu I, because phi I ये definition है mu की, mu को अपने ऐसे define किया, it's equal to mu. So U is in U and x is equal to U mu, which means that x belongs to U mu. So thus Si mu I intersection Sj mu j is subset of U mu. ये इसका सबसेट है. अब इसका कन्वर्स आपको चेक करना है. So now let's take an element x in U mu. x U mu में आपको प्रूव करना है x Si mu I में भी होगा, और आपको प्रूव करना है x हर किसी Si mu I में होगा. So that means it will be in the intersection then. ये फिर इंटरसेक्शन में होगा. So x is in U mu. What's this mu? Mu की definition क्या है? This mu, it's equal, इसकी जो definition है, it's equal to phi I mu I. It's equal to phi I mu I. So that means this gives, so this therefore there exists U in U such that x is equal to U mu, which implies that x is equal to U. What's mu? Mu is equal to, mu की जो definition है, it's equal to phi I mu I. It's equal to phi I mu I because mu is equal to phi I mu I. mu इसके बराबर है. So it's U phi I mu I. Okay. आपको चाहिए कि ये Si mu I में होना, but what's U phi I? U phi I is in, it's U phi I is a map from U to Si. So U phi I is some Si. It's an element of Si. So because this belongs to Si, so which means that this implies x belongs to Si mu I for all I. Okay, for all I and I, because U phi I, it belongs to Si, as
इसका भी रीजन आप लिखना चाहिए एज this phi I, it's a monomorphism from U to Si. So that Q's X belongs to Si mu I intersection Sj mu J for all I comma J in I and I not equal to G. So therefore U mu is subset of Si mu I intersection Sj mu J. So thus the equality holds. Si mu I intersection Sj mu J is equal to U mu. तो फाइनली एक्चुअली आपको क्या मिला, अगर इसको गौर से देखोगे आपको ये एक्चुअली मिला है, आपके पास U है, आपके पास सेमी ग्रुप एमलगम है, तो phi I तो ऑलरेडी आपके पास है Si और ये Sj है phi J, ये तो एमलगम की डेफिनेशन से ही है कि ये मॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म आपके पास है, और आपको और एक मोनोमॉर्फिज्म मिल गई है, यहाँ पर म्यू आइस आपको मिल गई, म्यू आइस फ्रॉम Si to P, फ्रॉम दिस इज म्यू J फ्रॉम Si to P, और फिर आपने ये डिफाइन किया, फिर ये कंपोजिशन आपने डिनोट किया म्यू से, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी इस डायग्राम की, इसकी डायग्राम की प्रॉपर्टीज क्या, इससे कोम्यूट हो रहा है, दैट मीन्स phi I म्यू I इज इक्वल टू म्यू, ये तो आपने डेफिनेशन से ही लिखा है, और सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये चेक की है Si म्यू I इंटरसेक्शन Sj म्यू J जो है दैट्स इक्वल टू U म्यू, तो यही तो एम्बेडेबिलिटी की प्रॉपर्टीज है. सो दस अब यहाँ पर therefore we have a following diagram in which जिसमें आपको ये दो प्रॉपर्टीज है. सो दस A is embedded in its free product, that's P, in its free product P. तो जब भी सेमी ग्रुप एमलगम एम्बेड होगा इट विल ऑलवेज एम्बेड इन इट्स फ्री प्रोडक्ट. तो आपको अब कोई दूसरा सेमी ग्रुप नहीं देखना, वेदर जब आपको चेक करना होगा कोई सेमी ग्रुप एमलगम जो आपके पास है वो एम्बेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या वो इस फ्री प्रोडक्ट में एम्बेड हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, अगर इसमें नहीं हो रहा तो देन इट्स नॉट एम्बेडेबल, अगर हो रहा तो देन इट्स एम्बेडेबल. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज that's the dominion, that's very important topic. Dominions and zigzags actually. Zigzags in semi groups. Okay, ये semi group में आपको डिस्कस करना है in semi groups. What's dominion? So dominion means something which is dominated. Okay, so zigzag फिर हम आगे डिस्कस करेंगे zigzag का मतलब क्या है. तो dominate क्या हो रहा है यहाँ पर, what's dominated? So if we have two semigroups U and S with U as a sub semigroup of S, U S का sub semigroup है. So let's define it. Let U be a sub semigroup, of a semigroup S. Suppose U has sub semigroup S का. सर इसमें शोर आ रहा है बहुत. An element शोर आ रहा है इसमें. तो ये शायद स्क्रीन की वजह से हो रहा है.
let U be a sub semigroup of a semigroup S and element D belongs to S. S का element है, is said to be dominated by U. तो डोमिनेट का मतलब क्या है? ये U से डोमिनेट है, मतलब D की वही प्रॉपर्टी है जो U के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इट इज डोमिनेटेड बाय U. अब प्रॉपर्टी कौन सी है वो हम आगे देखेंगे. एन एलिमेंट D belongs to S is said to be dominated by U if for any semigroup T, if for any semigroup T and for all monoid morphisms. It's a यहाँ पर आप लिखिए सब मोनाइड, ओके? so better, it's a sub monoid, not a sub semigroup. Sub monoid, okay? Sub monoid of a monoid, okay? Of a monoid is not a semigroup. Okay, if for any monoid, okay? If for any monoid, not semigroup, या मोनाइड में देख रहे हैं, मोनाइड में सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं. इफ फॉर एनी मोनाइड T and for all monoid morphisms, all monoid morphisms beta gamma from S to T, beta gamma from S to T, we have the following. We have U beta equal to U gamma for all U in U. तो अब देखिए U की प्रॉपर्टी क्या है, U के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? They agree on beta and gamma. That means U beta is same as U gamma for all U in U. अब D U से डोमिनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस शुड इम्प्लाई D बीटा इज इक्वल टू T गामा. तो अगर ये प्रॉपर्टी होगी इस D की, हम कहेंगे D U से डोमिनेट हो रहा है, मतलब D में वही प्रॉपर्टी है जो U के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है. मतलब U के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? ये इक्वल है बीटा और गामा पर. U के हर किसी U के हर किसी एलिमेंट की इमेज जो है दे आर इक्वल ऑन बीटा एंड गामा. So this should imply D beta is equal to D gamma. And this is called dominated by U. And the set of all such elements which are dominated by U is called the dominion of U in S. The set of all elements of S, the set of all elements of S that are dominated by U, is called set of all elements of S that are dominated by U, okay, that are dominated by U is called the dominion of U in S, is called the dominion of U in S, and is denoted by dome of U comma S. And this definition is given by Isbell, okay? The dominion की definition जो है ना ये Isbell ने दी है. तो फर्स्ट रिजल्ट जो आपके पास है, now one can easily verify that. One can easily verify that U is subset of dominion of U in S and it is subset of S. क्योंकि डोमिनियन में कौन से एलिमेंट्स आप ले रहे हैं? आप S के एलिमेंट्स ले रहे हो. दैट्स इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस. और U का हर कोई एलिमेंट तो डोमिनेट हो ही रहा है U से, क्योंकि ये तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना, U बीटा इक्वल टू U गामा. अब U का कोई भी एलिमेंट लीजिए वो ऑब्वियसली डोमिनियन में होगा.
यू का जो भी एलिमेंट होगा वो यू से डोमिनेट तो होगा ही, क्योंकि यू के पास ऑलरेडी वो गिवन प्रॉपर्टी है. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. यू सबसेट ऑफ डोमिनियन ऑफ यूएस एंड सबसेट ऑफ एस. तो फर्स्ट रिजल्ट जो आप करोगे दैट्स दिस. डोमिनियन ऑफ यू इन एस इज ए सब सेमी ग्रुप ऑफ एस. सर इसमें बहुत ज्यादा शोर हो रहा है सर. इज ए सब सेमी, सुनाई नहीं दे रहा? इज ए सब सेमी ग्रुप ऑफ एस. बहुत शोर आ रहा है. कौन सा शोर आ रहा है? इज ए सब सेमी ग्रुप ऑफ एस. तो इसका आप प्रूफ देख लोगे. दिस इज वेरी सिंपल. आप दो एलिमेंट्स लोगे डोमिनेंट से, आपको प्रूव करना है इनका प्रोडक्ट भी डोमिनेट हो रहा है यू से. दैट्स वेरी सिंपल. ये आप देख लेना ये प्रूफ इसका. प्रूफ इसका असाइनमेंट है. और एक थ्योरम ये है आपके पास. लेट यू बी ए सब सेमी ग्रुप ऑफ, लेट यू बी ए सब सेमी ग्रुप ऑफ एस एंड एस बी ए सब सेमी ग्रुप ऑफ टी एंड एस बी ए सब सेमी ग्रुप ऑफ मैं W लूंगा. देन फॉलोइंग होल्ड. Then the following hold. First property, अगर आप डोमिनियन दो बार अप्लाई करोगे, डोमिनियन ऑफ यू इन एस, इसका एस में आप डोमिनियन देखोगे, दिस इज इक्वल टू सी डोमिनियन ऑफ यू इन एस. सेकेंड प्रॉपर्टी, यू है सब सेमी ग्रुप एस का. So you can say dominion of U in S, dominion of U in S is subset of dominion of U in W, because W is bigger than S. And third property is dominion of what's the third property? Dominion of U in S is subset of dominion of U in W, and dominion of आपने पहले S को इंक्रीज किया. अब इसके केस में आप दूसरा सेमी ग्रुप फिक्स रखोगे. सो लेट्स फिक्स W. इट्स डोमिनियन ऑफ U in W. ओके, डोमिनियन ऑफ U in W is sub semi group of dominion of S in W. इसका प्रूफ भी आप खुद देख लोगे. प्रूफ इसका असाइनमेंट है इस तरह का. सॉरी इट्स अ सब मोनाइट. ओके, इट्स अ सब मोनाइट, क्योंकि हमने मोनाइट के केस में ये सारी चीजें डिफाइन की है. इट्स अ मोनाइट. ओके, इट्स अ मोनाइट. सर हम मोनाइट क्यों लेते हैं, सेमी ग्रुप क्यों नहीं लेते? हम फाइनली हम सेमी ग्रुप पर ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना इस प्रूफ की, ये मोनाइट से आ रही है. इसके बहुत सारे प्रूफ है इस बेल ज़िगज़ैग थ्योरम के, मगर ये जो प्रूफ है ये हम मोनाइट से ही डिराइव करेंगे. ये प्रूफ मोनाइट से फिर हम सेमी ग्रुप तक आ जाएंगे. उसका प्रूफ हम देखेंगे सेमी ग्रुप का. तो यहाँ पर आप लीजिए लेट यू बी ए सब मोनाइट. ओके, let U be a submonite of S, of a monite S. To be a submonite of a monite S. Okay, of a monite S. And S base, पहले थ्योरम थी सर, उसमें भी सबमोनाइट है. हाँ, उसमें भी सबमोनाइट. तो इस सेक्शन में आप सिर्फ मोनाइट लोगे. ओके, let S be a submonite of a monite W, of a monite W. तो इसका जो प्रूफ है वो भी आप खुद देखोगे. ओके, असाइनमेंट.